ایماندار کا کب سے ایماندار چنا گیا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں آپ سے اگر کوئی پوچھے تو جب سے یسوع پیدا ہوا میں تب سے ٹھیک ہوں. ہاللیلویا. تو جتنی بھی شکر گزاری کریں وہ سب کم ہے. ہاللیلویا. اور میں خدا کے خادموں کا دل سے شکر گزار ہوں، پاسٹر شوکت کا اور خاص کر اپنے بڑے بھائی پاسٹر بشارت کا، اور ان کی مسز بھی میری پیاری بہن موجود ہے. میں چاہتا ہوں ان کے لیے زوردار تعریف جائیں. آمین. بیٹی سمیرا بھی موجود ہے، وہ بھی خدا کی خادمہ ہے. تو یہ پاسٹر بشارت کی جو مسز میری بہن ہے، اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کا بیٹا ایک بڑا خادم ہے. آمین. اور میں ایسی بہنوں کو سلوٹ کرتا ہوں جن کے بیٹے بیٹیاں خادم بن جائیں. پریز دی لارڈ. پتہ کیوں؟ کیونکہ خادم بہت زیادہ گھر میں کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیے میں 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، تو میں 3 2 کبھی کبھی 4 دن گھر میں رہوں تو رہوں، نہیں تو آدھے دن باہر گزر جاتی. تو ابھی میری بیٹی گا رہی تھی، تو مجھے نہیں پتا یہ میری بیٹی گا رہی تھی. تو میں اچانک سے دیکھا تو اس کی میں نے ہاتھ میں میک دیکھا، یہ بول رہی میں وہ یہ تو میری بیٹی گا رہی ہے. اور بیٹی فرحان نے لوسپنڈ بھی کی کہ پاری صاحب کی بیٹی، تو میں نے پھر بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا شاید پاسٹر شوکت کی بیٹی ہے. تو مجھے یہاں پر بیٹھے محسوس ہوا کہ میری بھی بیوی محنت کر رہی بچوں پر. تو میں ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں. سکھات تھا تو کچھ نہیں، ٹائم بہت کم ہے، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں نے آج محسوس کیا کہ خدا خادموں کی دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے نا، ہاتھ اٹھائیں گے، تب کے بچے خادم ہی بنیں گے. آپ جو بھی لینا چاہیں آپ کو اس کے لیے اپنے منہ کو کھولنا ہوگا. اگر آپ بچوں کو خادم بننا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں میری بڑی خواہش تھی بچے خادم بن جائیں. آپ کدی چرچ نہیں آئے، خواہش خالی رکھ لیے. جب آپ چرچ آئیں گے آپ شکر گزاری خدا کی کریں گے، خادموں سے پیار کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے خادم کون ہے؟ اس موجودہ جہان میں جو خادم ہے یہ فرشتہ ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے نا کہ تھواتیرا کی کلیسیا کو کہ فرشتہ کو لکھ. اور اصل میں فرشتہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھیجا ہوا، پیغام دے کر. تو آج کے جو خادم ہیں یہ آپ کے فرشتے ہیں، اپنے خادموں سے پیار کیا کریں. آمین. ہاللیلویا. آپ جس بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں خدا کو برکت دے، اپنے خادموں سے ضرور پیار کریں. یہ خادم جو ہوتے ہیں نا خدا کے فرشتے ہی ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو جب آپ دیکھیں گے خادموں سے پیار کریں گے تو آپ کے بچے بھی خادم بنیں گے، اس لیول تک پہنچیں گے. پریز دی لارڈ. تو ہم ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ہم پیارے بھائی پرویز کے گھر کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت خدا کے جلال کے لیے یہ محفل سجائی ہے. ہاللیلویا. تو ان ساری شکر گزاریوں کا سارا عزت سارا جلال کس کے لیے ہے؟ ہمارے خداوند یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ جتنی بھی شکر گزاریاں ہیں وہ سب کس کے لیے؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیں. آمین. ہاللیلویا. تو یہ بڑا دن قریب آ رہا ہے، کرسمس. تو آپ کے چہرے ہمیشہ خوشی رہنی چاہیے، آپ کے چہروں پر کوئی اداسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو جب وہ پیدا ہوا ہم تو تب سے ٹھیک ہیں. تو اسی لیے ہر سانس کے ساتھ بھی اگر شکر گزاری کریں تو یہ کم ہے. پریز دی لارڈ. تو آئیں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. کلام خوشخبری کا کلام ہے. پیارے بھائی سونو بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بڑی پیاری ورشپ کی ہے، ان کے لیے میں چاہتا ہوں زوردار تعریف چاہیے. آپ سب بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور آپ بہت اچھے لوگ ہیں. خدا آپ کو ڈھیروں برکتیں دیتا ہے، اور برکتوں کے لیے خدا کی ہمیشہ شکر گزاری کیا کرو. ہاللیلویا. آئے آج ہم خوشخبری کے کلام کی طرف بڑھیں گے. کلام جو ہے وہ خوشخبری کا کلام ہے، اور خوشخبری کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیں بچاتا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو میں تے بڑا دنا جی خادم میں انی کوئی ڈگریاں حاصل نہیں کیتیاں، سیدھا ہی دسنا پنڈ تھاں دا بندہ ہے، زمیندار ہے، پٹھی وڈن والا ہاں تے خدا نے کہا چھڑ دے تے انجیل سنا. آمین. میں ایویں بڑیاں بڑیاں گلاں کراں، میں ڈگریاں کیتیاں تے اے کچھ نہیں. جو کچھ دیتا ہے میرے یسوع نے مجھے دیتا ہے، اور آواز دے کے دیتا ہے. میں پیسے دی خاطر نہیں آیا. خداوند کا شکر ہے، بہت بڑا بزنس ہے، زمیندار ہیں، فصلیں ہیں، سب کچھ ہے،
اور یہاں تک کہ لاہور ایئرپورٹ پر ڈیوٹی بھی تھی, آفیسر کی ڈیوٹی تھی, عام ڈیوٹی نہیں تھی, لیکن خدا نے وہاں سے بھی کان سے پکڑا, کھینچ کر ایئرپورٹ سے باہر پھینکا. اس نے کہا تجھے کیا کرنا, تو کر کیا رہا ہے. ہاللیلویہ. تو اس کا سارا عزت, سارا جلال کس کے لیے ہے؟ میرے یسوع مسیح کے لیے ہے. آمین. تو میں اس لیے بتانا ضرور سمجھتا تھا کہ میں بلایا گیا ہوں, بھیجا گیا ہوں اور چنا گیا ہوں. یہ 2004 کے 2004 میں جولائی کے مہینہ کے اندر خدا نے میرے ساتھ دوپہر 2 بجے کلام کیا تھا, اور میں نے ایک بہت بڑا تخت لگا دیکھا, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا زمین سے لے کر آسمان تک جیسے کوئی سفید رنگ کی کچھ چادر ہو, یہ تخت ہو, اور اس پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا میں دیکھ رہا تھا. اپنی کھلی آنکھوں سے لکھا تھا کہ دیکھ یسوع پیارا آیا اور آسمانی تحفہ لایا. یہ میری پہلی رویا تھی جب خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. اور جیسے میں نے ان نمبروں کو پڑھا, لکھے ہوئے تھے اردو کے اندر, اور دیکھتے دیکھتے ایک بہت بڑا فرشتوں کا لشکر میں دیکھ رہا تھا, اور ہر فرشتے کے اندر الگ الگ ساز تھے, ساز زندے تھے, اور بڑی تیزی کے ساتھ میوزک بجنا شروع ہوا. اور ایک اور فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت مائک تھا, اس نے بلند آواز سے گیت گانا شروع کیا. اس نے کہا دیکھ یسوع پیارا آیا اور آسمانی تحفہ لایا. اور جیسے میں نے بیڈ پر اپنے پر بیٹھ گیا, اور میں حیران تھا, میں سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کیا ہے, یہ کس لیے مجھے خدا یہ گفٹ دے رہا ہے. اور جیسے جیسے میں مسیح میں چلتا گیا, مجھے معلوم ہوتا گیا کہ وہ آواز کیا تھی, کیا گفٹ خدا مجھے دیا ہے. اور اسی گفٹ کو بانٹنے کے لیے اس نے مجھے تمام بزنس, تمام جاب, تمام تر کاموں سے فارغ کروا کر اس نے کہا نہیں بس اب تو نے یہی کرنا ہے. اور میں خدا کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں, جدھر بھی جاتا ہوں, میرا خدا, میرا محبوب میرے ساتھ ہے, اور مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کوئی فخر کی بات نہیں. بدروہیں پکار کہتی ہیں سدو پادری شفیق نو, اسی وہ دے نہ جنگ کرنی ہے. اور میں کہ نہ تسی میرے نہ جنگ کی گنی, میرا یسوع تڑ نہ جنگ کرے گا. آمین, ہاللیلویہ. آئے خوبصورت ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. خوشخبری کا کلام ہے, اور آج ہم خدا کے کلام کی خوشخبری کو آج ہم جانیں گے. تو میرے ساتھ آپ نے 2 حوالے نکالنے ہیں جلدی سے. جن بیٹیوں کے پاس, بھائیوں کے پاس خدا کا کلام ہے, اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہو, 2 حوالے پڑھیں گے, باقی میں بتاتا جاؤں گا. باقی آپ نے ان کو لکھتے جانا ہے. جو لکھ نہیں سکتے آپ اس کو پڑھتے جائیں جلدی جلدی سے نکال کر, کیونکہ بہت کم ٹائم کے اندر ہی ہم خدا کے کلام کو بیان کریں گے. ہاللیلویہ. تو پہلا والا نکالیں, متی کی انجیل پہلا باب 21 آیت, اور دوسرا والا آپ نکالیں گے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس. یہ لوکا کا انجیلی بیان ہے, 2 باب 10 آیت. دونوں آیتوں کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہاللیلویہ. ٹھیک. متی کی انجیل پہلا باب 21 آیت, لوکا کی انجیل 2 باب 10 آیت. جی پڑھتے ہیں. متی کی انجیل پہلا باب 21 آیت کے اندر لکھا ہے, اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. دوسرا والا لوکا 2:10, مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا, یعنی مسیح. سب بولیں آمین. فرشتہ کا پہلا سلام جب وہ مقدسہ مریم کو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا. اور جب دوسری دفعہ آسمان سے فرشتے آئے تو لکھا کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو اپنے گلہ کے پاس رہ کر ان کی کیا کرتے تھے, نگہبانی کرتے تھے. اور جب آسمان سے خدا کا فرشتہ اترا تو لکھا ہے کہ چاروں طرف خدا کا جلال چمکا, اور وہ ڈر گئے. اور فرشتہ کہتے ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشی کی وہ بشارت کیا ہے؟ وہ بشارت جو فرشتہ کہتے ہیں اس کے بیٹا ہوگا, اور اس کا نام کیا رکھنا, یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا
होने से पहले उसका नाम यीशु था, लेकिन जब पैदा हुआ तो उसका नाम खुदावन मसीह हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। हालेलुया। और ये खुशी की बिशारत है इस दिसंबर के महीना के अंदर कि हमारे मसीह खुदावंद पैदा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब वो पैदा हुए तब से साढ़े हालात ठीक हो गए। आमीन, हालेलुया। वो किस लिए आया? क्या खुशी की खबर है? वो हमारे हालात को चेंज करने के लिए आया। हम जानेंगे कि मसीह खुदावन कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जमीनी खिदमत पर थे और वे जमीन पर थे, मनाती करते थे, शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर, इलाकों के अंदर, कबीलों के अंदर, इबादत खानों के अंदर और तरह तरह के लोगों के अंदर जाकर वो आसमान की बादशाही की मसीह में मनाती करते थे और लोगों को कहते थे तौबा करो, आसमान की बादशाही जो है वो नजदीक आ गई है। वो मनाती करते थे और हम देखते हैं कि मसीह जब जनाबे आप मसीहा जमीन पर मनाती करते थे तो लोगों के उनके लिए तस्वुरात क्या थे, लोग उसको क्या कहते थे। और जब हवाले निकालते जाए, पढ़ते जाए मसीह में हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील 21 बाब की 10 आयत के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है कि जनाबे मसीहा जब आप यरूशलेम के अंदर एक बड़े शाहाना जलूस की शक्ल के अंदर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए, हलचल मच गई, शोर हुआ, लोग नारेबाजी कर रहे, लोग हाथों को उठा रहे, बुलंद आवाज से होशना के बादशाह के नारे लगा रहे। तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता, लोग कहते ये कौन है? यरूशलेम के लोग कहते ये कौन है? कौन है जो आज इतनी हलचल मच रही है? यरूशलेम के लोग कहते ये कौन है? और इसी तरह जब हम मरकज की इंजील 4 बाब की 40-41 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब जनाबे मसीहा आप कश्ती के अंदर अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहे थे और एक तुझसे एक तूफान आया और तेज आंधी थी, बड़ा तूफान था और लहरों का शोर बड़ा तेज था, लहरें बड़ी तेज थी और उन पानी की लहरों से, तूफानी हवाओं से कश्ती डूबना शुरू हो गई। और जब जनाब मसीहा आप उठे और उसने पानी को डांटा, हवा को डांटा, हवा थम गई, पानी का शोर खत्म हो गया, तो शागिर्द कहते हैं ये कौन है? शागिर्द कहते हैं ये कौन है? ये कौन है? इसके कहने से तूफान थम जाता है, इसके कहने से पानी का शोर खत्म हो जाता है। ये कौन है? ऐसे लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मैं हवाले दे रहा हूं, आप पढ़ते जाए, निकालते जाए। शागिर्द कहते ये कौन है? यरूशलेम के लोग कहते ये कौन है? लूका की इंजील और जब हम उस 7 बाब और 39-49 आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि जनाब मसीहा जब बड़े फरीसियों के साथ शमौन फरीसी के घर के अंदर खाना खाने के लिए गए तो बाइबल मुकद्दस बताती है वहां पर एक औरत थी जो संगे मरमर के अतरदान के अंदर एक बड़ा कीमती अतर लेकर आई और बाइबल के अंदर लिखा है वो यीशु के कदमों के पास आकर बैठ गई और जब वो उसके कदमों पर बैठ गई वो रोने लगी और आंसुओं के साथ उसके पांव भिगोने लगी और बालों से उसके पोंछने लगी। और फरीसी हैरान थे, वो तस्वर कर रहे थे अगर ये नबी होता तो ये जानता ये औरत कैसी है, ये औरत बदचलन है, लेकिन ये नबी नहीं है, इसको पता नहीं ये औरत क्या है। जब वो औरत यीशु मसीह के साथ ऐसा सलूक कर रही थी, ऐसा बर्ताव कर रही थी, तो वो जनाब मसीहा आप अपनी जुबान मुबारक से फरमा कर कहते हैं कि जा तेरे गुनाह, बुलंद से मेरे साथ रहना, जा तेरे गुनाह। और फरीसी कहते हैं, दिल में सोचते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ये कौन है जो गुनाह को माफ करता है। और फरीसियों सुनो, क्या तुम नहीं जानते बादशाहों का बादशाह मत्ती की अंजील की जो बयान है वो कहता तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से
हालेलुया। और वो औरत से कहता है तेरे गुनाह माफ हुए, तो लोग कहते हैं ये कौन है जो गुनाह को माफ करता है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब का जब हम मुताला करते हैं, तो जब जनाब मसीहा अपने मुबारक के लबों से, अपने होठों से मेरे आका यहूदियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और वो यहूदियों को बता रहे थे कि मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जो मुझे जानता है वो बाप को जानता है, और जो मुझे नहीं जानता वो बाप को। इसलिए मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं। और यहूदी कहते तू कौन है? यहूदी कहते तू कौन है? और यरूशलेम के अंदर हलचल मच गई, शोर हो रहा है, जल से जुलूस हो रहे। यरूशलेम के लोग कहते हैं ये कौन है? हवाएं थम जाती है, कश्ती डूबने से रुक जाती है। शगीर्द कहते हैं ये कौन है? फरीसी कहते हैं ये कौन है? यहूदी कहते हैं ये कौन है? तो आगे हमने देखना है कि आगे वो कौन है। आमीन, हालेलुया। आप जानने के लिए तैयार हैं वो कौन है? आमीन, आप जानेंगे वो कौन है। और जब हम मरकस की अंजील और उसके पहले बाब और 21-25 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है जब आप कुफरनहूम के एक इबादत खाना के अंदर तशरीफ फरमा थे और आप इस इबादत खाना में तालीम दे रहे थे, तो लिखा है वहां पर आपसे एक शख्स मिला और उस शख्स के अंदर नापाक रूह थी, और वो आपको देखकर बड़े जोर से चलाना उसने शुरू कर दिया, और वो बुलंद आवाज से यूं चला कर कहती है ऐ यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए आया है मुझे हलाक करे? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। अब देखो, नापाक रूह कहती मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का। लोग कहते तू कौन है? शगीर्द कहते ये कौन है? यरूशलेम के लोग कहते ये कौन है? फरीसी कहते ये कौन है? यहूदी कहते ये कौन है? बदरी कहती हम तुझे जानते हैं तू कौन है। तू खुदा का कदूस। लुका की अंजील 4 बाब की जब हम 33 आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर भी यही बयान है कि जब आप कुफरनहूम के इबादत खाना में मिसिसो आप तालीम दे रहे थे, मेरे मसीहा तालीम दे रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, आसमान की बादशाही के बारे में वो मनाती कर रहे थे, तो वहां पर लिखा एक शख्स मिला जिसमें दियो की रूह थी। क्या थी? दियो की रूह थी। और जब उसने आपको देखा तो बड़ी आवाज से चिल्लाया ऐ यीशु नासरी, ऐ यीशु नासरी, मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। तू खुदा का कदूस है। बुदरुएं जानती है, शैतान जानता है तू कौन है। मैं जानता हूं तू कौन है। तू खुदा का कदूस है। हालेलुया। क्या है तू खुदा का? जब लूका की इंजील 8 बाब की 26 आयत का मुताला करते हैं, तो लिखा है जब आप ग्रंथनियों के इलाका के अंदर गए, तो वहां पर आपसे एक शख्स मिला जो कब्रों में रहता था, जो नंगा था, जिसके अंदर एक बदरुओं का लश्कर था। जब उसने आपको दूर ही से देखा तो चला 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 कर रोने लगा और आपके कदमों में गिर पड़ा और कहता है मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। तू हमें हलाक करने के लिए आया है, तू हमें हलाक ना कर, हम तेरी मिन्नत करती हैं। यीशु पूछते हैं तेरा नाम क्या है? वो कहता है लश्कर, हम बहुत हैं। लश्कर जानता है वो कौन है, दो की रूह जानती है वो कौन है, नापाक रूह जानती है वो कौन है। यरूशलेम के लोग कहते हैं कि ये कौन है, शगीर्द कहते हैं ये कौन है, फरीसी कहते हैं ये कौन है, यहूदी कहते हैं ये कौन है, बदरुएं कहती हैं हम तुझे जानते हैं तू कौन है। हालेलुया। लोग देखे ना देखे, लोग जाने ना जाने, बदरूहें जानती हैं, शैतान देखता है, वो जानता है कि ये वो कदूस है, ये वो खुदा का कदूस है जो मुझे हलाक करने के लिए आया है। शैतान जानता था कि मुझे हलाक कर सकता है, ये मुझे ठाकरे में बंद कर सकता है। एक ही हस्ती है
जो मुझ पर गालिब आ सकती है, इसीलिए उसके कदमों पर गिर कर सजदे करती और माफी मांगती, कहती है मैं जानता हूं तू कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों कहते हम तुझे जानती है, तू खुदा का कदूस है। मिसियों, वो गुनाह क्यों ना माफ करे, उसके पास अख्तियार है गुनाह को माफ करने का, क्योंकि खुदा के अलावा और कोई गुनाह माफ नहीं करता। लेकिन मेरा यीशु मसीह, बाइबल कहती है वो खुद खुदा निजात का बानी और वही मनंजी है जो कहता डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, तुम्हारे लिए आज मनंजी पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस मनंजी के लिए जोरदार तालिब चाह दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानो यीशु कौन है, यीशु कौन है, जानो यीशु खुदा की जात का नक्श है, यीशु खुदा के जलाल का बर्ताव है। वो अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, वो कदीमो अलियाम है, वो असली और अब्दी है, और वो जो है जो आने वाला है। और यीशु कायनात बनाने और संभालने वाला है। यीशु कायनात का यीशु कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है और वही असली कलमा है। जब कुछ भी ना था यीशु तब भी था, जब कुछ भी ना रहेगा यीशु तब भी रहेगा। और दुनिया की सारी तरीकी यीशु के चकित घूमती है। आसमान में नबी और रसूल फरिश्ते तमाम मखलूकात का वो खुदा कदूस है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरकसीदा जिसका मुंतजर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिन को देखने का मुंतजर था। ऐसे बेहसन कि अब्राहम था, यीशु है और रहेगा। यीशु खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, और वो हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, शोहरत, प्रेशर, शुक्रगुजारी, तमजीद, हमद के लायक खुदा है। दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं ये यीशु की कुदरत, अख्तियार, अज़ियत, बारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं ये यीशु के रहम, करम और तर्ज की हदों को नाप सके। दुनिया में कोई हस्ती नहीं जो उसके ख्याल और इरादा का मुकाबला कर सके। कोई नहीं जो उसमें गुनाह को साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा और गुनहगारों का निजात देता है। वो इंसानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब और यतीम और बेवा के तहफ़्फ़ुज़ का मुहाफ़िज़ है। हालेलुया, वो उसके हक का मुहाफ़िज़ है। यीशु आपकी भट्टी में उतर जाता और लाज़र की सूरत में वो क्या करता है, बचा लेता है। बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, गूंगे पैरों को सुनने बोलने की ताकत देता है, लंगड़ों को चलाता, मफलूसों को बहाल करता और वो कोढ़ियों को पाक करता है। हालेलुया। और वो मुर्दों को जिंदा करता। वो तो पानी को कहे मैं बन जा तो मैं बन जाए, वो कहे तो दरख्त पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। वो गुनहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का बानी, वो जिंदगी का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का नूर, वो राहत जिंदगी है, बेड़ों के लिए अपनी जान देता। वो अजीब मुशीर खुदा कादर सलामती का शहजादा है। उसके कहने और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुबान मुलायम और हल्का है, कोई उसके इरादे का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसके वजूद को, कोई उसके ख्याल नक्श को मिटा नहीं सकता। उसको कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदेस उसे मार न सका और फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सकता, मौत और कब्र उस पर गालिब न रह सकी। वो मर गया और मौत और कब्र पर फतह पाकर जीता और अब भी इसके सर को कुचला और उसके सारे कामों को मिटा दिया। वही है जो आखिरी दिन सबको जिंदा करेगा, वही है जो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने आएगा। हर एक काम के मुआफिक देने के लिए जर उसके पास है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद बादशाह का बादशाह और खुदा बंदों का खुदा है, जो मौत कब्र पर गालिब आ गया, शैतान के
उसके सर को कुचला और मसीह में उसके कामों को मिटा दिया। ये वो यीशु है जिसकी बाबत लिखा है, तेरे बेटा होगा तू उसका नाम, तू उसका नाम, तो उसका नाम। और जब पैदा हुआ तो फरिश्ता कहता है डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे महबूब की शाने, देखो अपने आका की शाने, देखो अपने महबूब की शाने। हालेलुया। ये खुशखबरी किसी एक के लिए नहीं, ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं, ये खुशखबरी किसी पास्टर बिशप के लिए नहीं, ये खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए है। और वो खुशखबरी देने वाला फरमाता है, जो कोई मुझ पर ईमान लेगा वो कभी हलाक, बुलंद आवाज से पुकारो, वो कभी हलाक बल्कि वो जिंदगी पाएगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। शैतान इसलिए आया वो मारे गिराए कुचले, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो जिंदगी के लिए आया है, वो जिंदगी का दरवाजा है, वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है। आमीन, हालेलुया। वो औरत से कहता है, औरत तो अगर जानते कि तो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, उससे मांगती तो तुझे जिंदगी का, हालेलुया बोलो, वो तुम्हें जिंदगी का। औरत कहती है खुदा वो मुझे पानी दे दे ताकि मैं पीऊं, कभी प्यासी ना हो, कभी कुएं पर पानी भरने ना जाऊं। हालेलुया, वो जिंदगी का पानी है। जब यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं तो लिखा है यीशु के फसह के दिन खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से पुकार कर कहता है, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आकर पिए, और जो मेरे पास आकर पिएगा उसमें से जिंदगी के पानी के चश्मे, उसमें से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर जिंदगी को पाना चाहते हैं तो हमने इस खुशखबरी को जानना है जो मेरे और आपके लिए जमीन पर आया है। आमीन। और ये खुशखबरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी के सिवा और कोई खुशखबरी नहीं है। आमीन। मैंने इसलिए आपसे कहा, आपसे जब कोई पूछे आपका क्या हाल है तो लोगों को बताओ जब से मसीह पैदा हुआ मैं तब से ठीक हूँ। आपका इंतखाब तब से हुआ है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है ईमानदारों का इंतखाब कब हुआ है, ईमानदारों का जन्म कब हुआ है, ईमानदारों की पैदाइश कब हुई है। इफ्सियों के पहले बाप के अंदर भी आपको पता चल जाएगा कि खुदा ने आपको बनी आलम से पेशतर उसमें चुन लिया है। बनी आलम से सबसे पहले खुदा ने ईमानदारों का जो है वो चुनाव किया हुआ है। खुदा आपको जानता है। हालेलुया। मिसियो आप देखो, लोग कहते हैं ये कौन है, शिगिर्द कहते ये कौन है, फरीसी कहते ये कौन है, यहूदी कहते ये कौन है, लेकिन शैतान कहता है मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। आमीन। लोग जाने ना जाने, शैतान जानता है, बदरूहें देखती हैं, वो जानती है तू खुदा का बेटा है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए जो इस खुशखबरी पर ईमान ले आते हैं वो मसीह से खुदा के बेटे और बेटियां। यूहन्ना की अंजील और उसके पहले बाब के अंदर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद होने का उनको क्या कर दिया है, क्या दे दिया है। ऊंची आवाज ना बोलो, जिन्ना कोले हाके खुदा ने, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने वो किस लिए धरती पर आया, उसका जन्म जमीन पर क्यों हुआ, क्यों वो इंसानों के मुशाबह हो गया, क्यों वो इंसानी रूप अख्तियार कर गया, क्यों नूरानी तख्त को छोड़ दिया, क्यों आसमान को छोड़ दिया, क्यों जमीन पर उतराया। इसलिए उतराया क्योंकि जो लोग तारीकी में थे, जो लोग अंधेरे में थे, जो लोग भटके हुए थे, जो लोग रास्ता भूल गए थे, जो लोग मौत के फाटकों के करीब जा चुके थे, ताकने वाले थे, लोग जब खुदा ने देखा, गलतियों के खत के अंदर लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने अपने बेटे को जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, और ताकि शरीयत के मुताबिक को मुंह ले ले और चुरा ले। यूहन्ना की इंजील पहला बात कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुद खुदा था, और कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और उस जिंदगी आदमियों का नूर थे, और यही नूर तरीकी
धरती में चमका, वो नूर हमें तरीके से निकाल कर उस नूर की अजब रोशनी के अंदर दाखिल करने के लिए जमीन पर आ गया। हालेलुया। और लिखा है जब आसमान से फरिश्ता उतरा तो उसके चारों तरफ जलाल जलाल चमका। भाई जलाल क्यों ना चमके, जलाल का बादशाह उतराया है। आमीन। जलाल क्यों ना हो, जलाल क्यों ना हो, जलाल का बादशाह खुद तशरीफ फरमा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर थे और नूर तरीके के अंदर चमका। और ये वो नूर है, ये नूरों का बाप है, जो जलाली है, जो कुदरत हस्मत का बादशाह है। वो जमीन पर उतर कर आ गया, किस लिए? मेरे और आपके लिए। आमीन। हालेलुया। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद होने का हक बख्श दिया। इसीलिए तो जब शागिर्दों ने बोला सानू दुआ करनी सिखा, वो कहते जदों भी दुआ करो जी ऐ हमारे की अख्तियार दिता उन्हें, ऐ हमारे। आप जब पुकारते तो ऐ हमारे बाप कहकर पुकारते, क्योंकि यही उसने हमें सिखाया है। क्यों सिखाया है? क्योंकि वो जानता था जो जितने मुझ पर ईमान ले आएंगे उनके पास ये हक होगा, ये प्राइस होगा और मसीह में अजीजों ये पावर उनके पास होगी ताकि वो बाप कहकर उनको पुकार सके। इसीलिए वो आया ताकि जो मौत और अंधेरे में भटक चुके थे, जो मौत के फाटकों पर जा चुके थे, जो रास्ता भूल चुके थे, वो भटके हुओं को रास्ते पर लाने के लिए, वो अंधेरे और तारीकी से निकालने के लिए और बाप की जब रोशनी में दाखिल करने के लिए खुद मसीहा जमीन पर उतर आ गए। आमीन। हालेलुया। और उसने खुद जमीन पर तशरीफ लाकर हमें सबको, बाइबल कहती है तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने नहीं, वो कहता मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारी कीमत पे की है, तुम्हारी प्राइस, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। आमीन। हालेलुया। पता आपकी कीमत क्या उसने अदा की है? मैं चर्च में भी हर कलीसिया में ये कहता हूँ जेड़े ते रियल मसीह ने कदी गरीब नहीं होंदे। मसीह कदी गरीब नहीं हो सकते। लिख के ला लो 100%, अपने बार बूहे ते लिख दो मसीह कदी गरीब नहीं होंदे। लोगों को बता दो मसीह कभी गरीब नहीं होते। आमीन। पता क्यों? मसीह तियां पुत्र के देने सुन दसो ब्राह्मण किदे तियां पुत्र ने? ओ बादशाह दे। ते बादशाहां दे कदी तियां पुत्र गरीब हुंदे ने? चौधरियां दा पुत्र चौधरी हुंदा है ते बादशाहां दे तियां पुत्र बादशाह ही होणगे। भैनो तुसी रानियां जे ते भाईओ तुसी राजे जे। ते क्या रानियां राजे कभी गरीब होते? नहीं, कभी नहीं। पता क्यों? बाइबल उसका प्रूफ दे रही है। उसने कहा है मैंने तुम्हारी कीमत। मुकद्दस मरियम एक बड़े यहूदी गरीब घराने में से थी। यूसुफ बड़ा गरीब घराने का था। 60 किलोमीटर का फासला था। जब नाम लिखवाना था तो सफर किस पर किया? गधे पर। बाइबल कहती है उसको सराय में जगह कहां पर मिली? कितनी गरीब जगह पर वो पैदा हुआ। क्यों? वो इसलिए गरीब घराने में गरीब जगह पर पैदा तशरीफ फरमा। तुसी गरीब ना रहो, ताड़े गरीब होने भी उन्हें कीमत अदा की है। आमीन। वो खुद गरीब घर के अंदर पैदा हुआ, तुसी गरीब ना रहो, तुसी अमीर हो जो। आमीन। तो जो फिर उसका जन्मदिन मनाते हैं वो फिर गरीब क्यों है? फिर ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ मतलब ਜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚਰਸਲੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ। ਇਹਦਾ मतलब ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ। अगर जे उत्ते सितारा जाग रहा है तो दिल च भी सितारा लगे। आमीन। ते जे बाहर तख्ती लगी फ्याज मसीह ते अंदर लगी हुई तख्ती यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब मसीह सुनो, जितना हमारा मसीह कायम है, अगर हमारा मसीह गैर महफूज नहीं है तो उसके लोग गैर महफूज नहीं है। अगर हमारा मसीह कायम है तो उसके लोग उतने ही कायम है। जितने तूफान आएंगे, जितने बहरान आएंगे, सबसे पहले वो हमारे मसीह से टकराएंगे, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे। वो पहुंचेंगे नहीं क्योंकि साडा तो मसीह बड़ा कायम है। हालेलुया। और उसने कहा जो कोई इस पत्थर से टकराएगा वो चकना।
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਟਕਰਾਣਗੇ ਨਾ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਣਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਹੀ ਪੜਵਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। आमीन, हालेलुया। और जब देखते हैं बाहर फयाज मसीह अंदर यसू कहते ओहो ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ है मसीहा तो उसने मोहर लगा दी रूह कुदस की। पढ़ लेना इफ्सियों का खत पहला बाब 13 आयत के अंदर लिखा है रूह कुदस की मोहर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला बयाना है आसमान की बादशाही में दाखिल होने का, रूह कुदस जिसकी आप पर मोहर लग चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमेशा कायम रहो। क्यों? क्योंकि हमें मसीह ने कायम किया है, हमारा चुनाव हुआ है, हमें चुना गया है, हमारा फिदिया दिया गया है। ये वो यीशु मसीह है जिसकी खुशखबरी आज मैंने आप तक सुनाई है। अगर आप इस खुशखबरी को जान जाए, ना आप गरीब रह सकते हैं, ना मसीह में से जो आप परेशान रह सकते हैं। कभी बदरूहें हमले नहीं करेंगी, कभी शैतान हमले नहीं करेगा, कभी बीमारी अटैक नहीं करेगी, कभी कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा कायम रहेंगे और यीशु मसीह में कायम रहेंगे। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है। और कलाम के अंदर लिखा हर एक घुटना उसके जोर में झुकेगा, ख्वाह ज़मीनियों का ख्वाह आसमानियों का है। उसके जोर में झुकें और उसी की इबादत करें, हर सांस के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें। मसीह साह लैन दे कोई पैसे नहीं जे लगदे, शुक्रगुजारी करया करो। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ 10,000 ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਤ 'ਚ ਸਾਹ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸੀ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, हालेलुया, हालेलुया। तो आप किसके लोग हैं? मसीह के बेटे, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। हालेलुया। जो उसका चाहने वाला है, उसे पहचानने वाला है, वो उसका खुदा है। आमीन। वही गुनाहों को माफ करता है, वही तूफानों को थमा देता है और वही सब कुछ करता है, और उसी की कुदरत अल्लाह ही है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुका लें। आए उस खुदावंद, उस महबूबे मसीहा के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हालेलुया। हाथों को उठा लीजिए और खुदावंद के जोर में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर लें, अपने हाथों को उठा लें और खुदावंद से कहना शुरू करें, खुदावंद जी जो आज खुशखबरी मैंने सुनी है, मैं इस खुशखबरी को कबूल करता हूँ। आप ही वो खुदा हैं, आप ही कायनात के बनाने वाले, संभालने वाले, असली कलम